ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ فاٹا اصلاحات کا معاملہ گرم، قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی بل پیش نہ ہوا، اپوزیشن کے ارکان واک آؤٹ کر گئے، اجلاس ملتوی۔ آج تو ہمارا دین، ہمارا اسلام خطرے میں ہے، یہودیت کے ہم اس کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ حکومت بالکل نان سیریس ایٹیٹیوڈ لیے ہوئی ہے۔ اس ایشو پہ جو اتنا بڑا ایشو ہوا ہے، کیا اس پہ پرائم منسٹر کو اٹھ کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ ساری جماعتوں کو بلانا نہیں چاہیے؟ فلسطین کے معاملے پر حکومت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے، خورشید شاہ کی کڑی تنقید۔ وزیر اعظم کو مختلف مسلم ممالک کے دورے کرنے کی ضرورت تھی، قومی اسمبلی میں خطاب۔ ٹرمپ کا فیصلہ نامنظور، چلی میں امریکی سفارت خانے کے باہر فلسطینیوں کا شدید احتجاج، پولیس نے واٹر کینن سے منتشر کیا۔ روسی صدر کی ترک ہم منصب سے ملاقات، امریکی اقدام سے صورتحال خراب ہوگی، پیوٹن کا انتباہ۔ ڈالر نے روپے کو مزید نیچا دکھا دیا، انٹر بینک ریٹ میں مزید 1 روپے 85 پیسے اضافہ، 110 روپے 25 پیسے تک جا پہنچا۔ امریکی کرنسی کی اونچی اڑان سے مہنگائی کے طوفان کا شور سنائی دینے لگا، خشک دودھ، دالیں اور مختلف درآمدی اشیاء کے دام 8% تک بڑھنے کا خدشہ، معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے، تاجر پریشان۔ سی پیک منصوبہ چین کا پاکستان پر اعتماد اور لازوال دوستی کا ثبوت ہے۔ 2013 میں امن و استحکام کی خراب صورتحال کا بھی سامنا تھا، دوست ملک نے سرمایہ کاری کا آغاز کیا، وزیر داخلہ احسن اقبال کا تقریب سے خطاب۔ بارش موت بن کر برس پڑی، ننکانہ صاحب کے قریب شاہ کوٹ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، 4 بہن بھائی جاں بحق، ماں بیٹی زخمی، ہنستے بستے گھر میں قیامت۔ لاہور میں قاتل ٹرک نے زندگی چھین لی، 10ویں جماعت کا طالب علم موٹر سائیکل پر اسکول کے لیے نکلا، سندر کے قریب زد میں آ گیا، پولیس نے ٹرک قبضے میں لے لیا، ڈرائیور فرار۔ فیض آباد دھرنے کی نشریات روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت اور چیئرمین پیمرا کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چلتے ہو تو چاند پر چلیے، امریکی صدر نے ایک بار پھر انسانی مشن بھیجنے کا اعلان کر دیا، نئی خلائی پالیسی پر دستخط۔ 2 اور سپوت پاک سرزمین پر قربان ہو گئے، شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا، پہاڑی علاقوں میں چھپے دہشت گردوں نے پاک فوج کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس سے 2nd لیفٹیننٹ اور سپاہی شہید ہو گئے۔ سپاہی کا نام بشیر بتایا جا رہا ہے، جبکہ 2nd لیفٹیننٹ عبد المعید حال ہی میں پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ تو آج کے روز قوم کے 2 اور سپوت پاک سرزمین پر قربان ہوئے ہیں، قوم ان دونوں شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں آج کے روز دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا ہے اور پہاڑی علاقوں میں چھپے ان دہشت گردوں نے پاک فوج کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔
जहां पूरी कौम खिराज अकीदत पेश कर रही है, वहीं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इन दोनों शुहदा से मुताल्लिक पैगाम जारी किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि आज़ादी की कीमत होती है जो चुकाना पड़ती है, धरती माँ के लिए बेटों को कुर्बानी देना पड़ती है। आज हमारी आज़ादी इन्हीं बहादुरों की मरहूने मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि शहदा को सलाम पेश करता हूँ। छुप कर वार, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग, पाक फौज का ऑफिसर और जवान शहीद। वजीर आजम पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के काफिले पर हमले की मजम्मत की है। वजीर आजम ने शुहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की और सुगवार खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर जो पैगाम जारी किया गया है उसमें कहा गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि शहदा ने मादरे वतन की हिफाजत के लिए सबसे कीमती जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि बहैसियत कौम हम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अल्लाह की मेहरबानी से दहशतगर्दों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। वजीर आजम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो बचे खुचे दहशतगर्दों का भी जल्द खात्मा कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। इन शहदा को दुनिया न्यूज़ का भी सलाम। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि शहर इख्तिदार के यकबस्ता मौसम में सियासी मौसम खूब गर्म है। फाटा इस्लाहात बिल जो कि आज कौमी असम्बली में पेश होना था, आज फिर से पेश ना हो सका और आज भी ये गर्मी ठंडी ना हो सकी। कौमी असम्बली में दूसरे रोज़ भी बिल पेश ना हुआ, जिस पर अपोजिशन सरापा एहतजाज बन गई, अरकान वॉकआउट कर गए। इजलास मुलतवी कर दिया गया है। तो शहर इख्तिदार का मौसम इस वक्त ठंडा है, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है और मामला जहां एक तरफ फाटा के इंजमाम से मुताल्लिक है, फाटा इस्लाहात से मुताल्लिक है, वहीं अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने आज के रोज़ एक इंतहाई अहम मामले से मुताल्लिक भी कौमी असम्बली में गुफ्तगू की और ये कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के दौरे करने की ज़रूरत थी। पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह खासे बरहम नजर आए और हुकूमती अरकान के ना आने पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि दिलचस्पी नहीं लेती है हुकूमत ऐवान में आने पर और यही वजह है कि आज दूसरे लोग इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल हो गए फाटा के मसले का, अब हल निकालना होगा। आपको बताएं कि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने भी इजहार ख्याल किया। नाश्ते की टेबल पर होने वाले फैसले मंजूर नहीं, फाटा के मामले पर हम इसीलिए वॉक आउट करते हैं। असद उमर का कहना था कि नाश्ते की टेबल पर होने वाले फैसले हम मंजूर नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की फिर क्या ज़रूरत है अगर फैसले ऐसे ही करने हैं। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। जिसमें किसी मुसलमान के ऊपर दो राय नहीं है, उसको वो मसला बनाया क्यों गया, वो जवाब आज तक हमें इस पार्लियामान के अंदर आज तक नहीं मिला। हम मीडिया के अंदर सुनते हैं जवाब, हमें आज तक असेंबली के अंदर ये जवाब नहीं दिया गया कि वो क्यों खड़ा किया गया मसला और वो किसने खड़ा किया, हमें आज तक नहीं मिलता। हमें मीडिया में पता चलता है कि जी कोई रिपोर्ट है, उसमें 2 नाम थे, 2 नाम में से 2 मिटा दिए गए। एक तो बेचारे वो जाहिद आमिद साहब जो हैं वो कुर्बानी का बकरा बन गए, वो दूसरा नाम किसका था वो हमें नहीं पता चलता पार्लियामान के अंदर। फिर उसके बाद वो मामला हल होता है। सब हम यही चाहते थे कि मामला जो है अफ़ाम तफ़हीम से हल हो, सब ये चाहते थे कि कोई तशद्दुद ना हो, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेटेस्ट जो अभी बात की गई है, ये एक अजीबो गरीब जवाब दिया गया है। क्या ये मसले नाश्ते पे हल होंगे पाकिस्तान में? तो इस ऐवान की क्या जरूरत है? एक नाश्ते की टेबल पे रख लें या अंदरून शहर में बड़ा जबरदस्त नाश्ते मिलते हैं, वहां पे हम चला लिया करेंगे इस पार्लियामान की, फिर क्या जरूरत है? तो नाश्ते की टेबल वाले फैसले हमें मंजूर नहीं है जी। हम इस वक्त बॉयकॉट करेंगे जब तक ये फाटा का मामला वापस असेंबली के अंदर नहीं लाया जाएगा। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपोजिशन रहनुमाओं ने क्या मौक़िफ़ अपनाया आपने सुना। अभी एक और अहम मामले से मुतालिक आपको अपडेट करें। हुदैबिया केस में शाह खावर को स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब मुकर्रर कर दिया गया है। शाह खावर को नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। ये तफसीलात शेयर की गई हैं तर्जुमान नैब की जानिब से और ये बताया गया है कि प्रोसिक्यूटर जनरल की आसामी खाली होने की वजह से नैब को मुकदमात में मुश्किलात का सामना था। कल के रोज़ दरख्वास्त इल्तवा भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी।
इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नैब की 2 रुकनी टीम लंदन रवाना हो गई है। शरीफ खानदान की मुबैना करप्शन के हवाले से सबूत हासिल करेगी। ये टीम लंदन में मौजूद अहम गवाहों के बयानात भी हासिल करेगी और एंटी करप्शन यूनिट के हुक्काम से, जो कि बरतानवी एंटी करप्शन यूनिट है, उनसे भी मुलाकात करेगी। तो इस तरह से सबूत इकट्ठे करेगी। अहम मामला है शरीफ फैमिली से मुताल्लिक़ आमदन से ज़ायद असासों का, और इससे पहले भी एक टीम कुछ मामलात को परखने के लिए, तफसीलात जानने के लिए और कुछ दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए लंदन गई थी, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई, लेकिन अब आज एक मरतबा फिर ये खबर आ रही है कि नैब की ये 2 रुकनी टीम है जो कि लंदन रवाना हुई है। यहाँ कुछ अहम गवाहों के बयानात हासिल किए जाएंगे और करप्शन के हवाले से कुछ सबूत भी जमा किए जाएंगे। सुहेल कैसर हमें इस बाबत मजीद अपडेट करेंगे। सुहेल बताइएगा। ये काफी दिनों से इस बात की तैयारी की जा रही थी और डीजी जो नैब है उनकी तरफ से ये ऐलान किया जा चुका था जी कि जो टीम है एक लंदन भेजी जाएगी और जो शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं उनकी तहकीकात के लिए लंदन के मुख्तलिफ इदारों से राब्ता करेगी। इसके लिए तैयारियां तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से चल रही थी। फिर 2 रुकनी टीमों के नाम का डिसाइड करने के बाद आज वो जो 2 रुकनी टीम है वो लंदन रवाना हो गई है। वहां पर वो बरतानवी एंटी करप्शन यूनिट के हुक्काम से भी उनकी मुलाकातें तय हैं और कुछ रोज तक ये वहाँ क्याम करने के बाद वापस आएगी और वहाँ जो इन केसेस के हवाले से जो गवाह लंदन में मौजूद हैं उनके बयानात भी हासिल करेगी। तो नैब हुक्काम का ये कहना है जी कि ये तमाम जो कार्रवाई है इसको मुकर्ररा मुद्दत के दौरान ही मुकम्मल कर लिया जाएगा और टीम ये तमाम एविडेंसेस इकट्ठे करके अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक वापस आ जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। आगे बढ़ते आपको एक और अहम खबर दें। डॉलर ने रुपए को मजीद नीचा दिखा दिया है। इंटरबैंक रेट में मजीद 1 रुपए 85 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर 110 रुपए 25 पैसे तक जा पहुंचा है और ऐसे में रुपए की कदर मजीद गिर सकती है, बताया गया है माशी माहिरीन की जानिब से। इसी वाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी से। तारिक बताइएगा क्या वजूहात हैं इजाफे की डॉलर की कीमत में? इस वक्त पाकिस्तान में जो है खास तौर पर वो अदायगियों का तवाज़ुन कुछ हद तक बिगड़ गया क्योंकि इम्पोर्ट काफी हद तक बढ़ चुकी है जबकि एक्सपोर्ट जो है वो मुसलसल जो है उसमें कोई खास खातिर खा इजाफा नहीं देखने में आ रहा। यही वजह है कि डॉलर के कदर में कंटिन्यूसली हमें इजाफा दिख रहा है। इस वक्त हमारे पास जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर की डिमांड में काफी हद तक इजाफा हो गया है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इस वक्त जो इम्पोर्टर्स है उनका ख्याल है कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा होगा, इसकी वजह से डिमांड काफी हद तक बढ़ चुकी है। दूसरी जानब स्टेट बैंक का कहना है कि ये तमाम के तमाम जो भी अमल है वो डिमांड एंड सप्लाई पर होगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड जैसे जैसे मार्केट में बढ़ रही है और जो एलसी खुल रही है उसमें भी जो है इम्पोर्टर्स की जानिब से डिमांड काफी हद तक ज्यादा है। यही वजह है कि डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा। और अभी रिसेंटली हमें कभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि डॉलर जो है 111 रुपए भी जो है वो क्रॉस कर चुका है। डॉलर 111 रुपए भी क्रॉस कर चुका है। डॉलर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है जिसकी वजह से डॉलर इस वक्त 111 रुपए भी इस वक्त क्रॉस कर चुका है। बहुत शुक्रिया तारिक गौरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान ने मुल्क में महंगाई के नए तूफान का इंदिया दे दिया है। खुश्क दूध, दालें और